Good morning, students. Today I'm going to explain chapter 8 motion once again. As in our live video session, all of you said, ma'am, please revise chapter 8. So I'm going to explain this chapter in short. In this chapter, in this video, I'm going to explain few terms like motion, distance, displacement, speed, velocity, scalar quantity, vector quantity, average speed, average velocity, acceleration, positive and negative acceleration, uniform motion, non-uniform motion, etc. Whatever terms we are going to deal in this chapter, first I am going to explain them. The chapter name is motion. Motion means all of us are used to of this term, but motion means when an object changes its position with respect to time, with respect to its surrounding, then the object is said to be in motion. If an object changes its position with respect to time, with respect to its surrounding, then it is known as, then the object is said to be in motion. There are different types of motion you must have seen. Motion in a straight line, motion on a circular path, zigzag motion, one-dimensional motion, two-dimensional motion, three-dimensional motion, rotate. In higher classes you will also study rotational motion, then and other types of motions also, and there are various examples. One thing I would like to make it clear here, that an object can be in motion as well as इन रेस्ट साइमल्टेनियसली. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है एट द सेम टाइम. यू विल बी सरप्राइज कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है. येस, इट इज़ पॉसिबल. आई जस्ट गिव वन एग्जाम्पल दैट सपोज a bus is moving and many passengers are sitting inside that bus. So for one passenger, the other passenger is at rest. एक पैसेंजर के रिस्पेक्ट में दूसरा पैसेंजर रेस्ट में है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है. बट फॉर ए पर्सन आउटसाइड द बस, द पैसेंजर इनसाइड द बस इज़ इन मोशन. बाहर जो आदमी, उसको दिख रहा है कि जो बस के अंदर बैठा हुआ आदमी है वो मोशन में है. सो द पैसेंजर इज़ एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन साइमल्टेनियसली, बिकॉज द रेफरेंस ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट. If the reference object is the passenger inside the bus, then he is at rest. But if the reference object is outside the bus, then the passenger will be in motion. So as I said ki object, any object can be in motion as well as at rest at the same time. So it depends upon the surrounding, it depends upon the reference object. Now, so I hope you would have understood the motion. Now, distance. What is distance? Distance is the total path length traveled by an object. Total path length traveled by an object. It can be circular path, it can be straight path, it can be zigzag line. So the total path length, that is distance. I will explain this by drawing some figure. Distance. Suppose an object is moving from here to here, from point A to point B. So the path length AB is the distance. Suppose an object is moving on a circular path. So this circumference, suppose the person starts moving from here and reaches here. So this circumference of this circular path is the distance. Suppose a person goes from A to B and comes back to A. So his distance will be AB plus AB, twice of this distance. Suppose this distance is D. So his total distance will be 2D if he goes from A to B and B to A. Now, there is another term, displacement. Displacement is the shortest distance between initial and final point. Distance क्या था? Total path length. What is distance? Total path length of an object is known as distance. But displacement is shortest distance. Shortest
distance between initial and final position of the object. What does it mean? जहाँ से स्टार्ट हुआ मोशन और जहाँ पे एंड हुआ उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सपोज एक बंदा स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक पहुँचा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए बी, और डिस्टेंस भी ए बी है. बट अगर वो कोई भी पर्सन ए से स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा और वापस बी से ए तक पहुंचा, तो इनिशियल क्या था? ए. फाइनल क्या हुआ? ए. तो ए और ए के बीच का डिस्टेंस 0. तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ए पोजिशन and reaches back to the same position, then displacement will be 0. दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये एक सर्कल है. सर्कल पे ये पॉइंट ए है, ए से स्टार्ट किया और वापस ए पे आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. लेकिन डिस्टेंस क्या होगा इसका? सरकमफेरेंस. अगर सपोज ए पे स्टार्ट किया और बी पे आ गया, राइट, तो डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस लाइन के बराबर होगा, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एंड हाफ ऑफ सरकमफेरेंस जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन करूँगी. Scalar quantities and vector quantities, you must have learned this, but I would like to explain it again. देखो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन्स जो भी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जिसके बारे में फिजिकल क्वांटिटीज़, मास हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, फोर्स, ये सब चीज़ें जो ये जो टर्म आप सुनते हो, दिस आर फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं. एक होता है स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली वैल्यूज़, which does not have any direction. But vector quantities are the quantities which have magnitude as well as direction. Magnitude means value. Suppose मैं एक चीज़ लिखती हूँ, एक फिजिकल क्वांटिटी, सपोज मास लिखा, ठीक है. तो मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास हम करें तो हम कितना लेते हैं? सपोज मास इज़ 5 kg. ये जो हम 5 बोलते हैं ना, दिस इज़ मैग्नीट्यूड. कितना उसका वैल्यू है? 5 है. आपने मार्केट गए और 1 kg शुगर लेके आए, तो मास कितना था? 1 kg. बट वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या है? 1 kg इज़ द यूनिट. ये जो 5 नंबर है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड या वैल्यू. मैग्नीट्यूड या वैल्यू. और ये kg क्या है हमारा? दिस इज़ यूनिट. जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, दैट इज़ यूनिट. तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ वैल्यूज़ होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. सपोज मैंने बोला 1 kg शुगर, तो 1 kg शुगर में 1 kg इज़ द मैग्नीट्यूड. कोई डायरेक्शन तो नहीं है कि 1 kg शुगर टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ. इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. बट अगर मैं बोलूँ फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज़, तो फोर्स सपोज 10 न्यूटन है, तो फोर्स का हम डायरेक्शन बता सकते हैं. आई एम अप्लाइंग 10 Newton force on this pen towards upward direction or towards north direction, towards south, towards east, कुछ भी direction we can assign direction to a quantity. तो force में direction भी है और 10 Newton force towards, we can say towards pen या towards table, towards north, कुछ भी हम direction assign कर सकते हैं. तो जब यहाँ पे नॉर्थ हमने लिखा, ये हमारा डायरेक्शन बता रहा है. और ये जो 10 न्यूटन बता रहा है, 10 इज द मैग्नीट्यूड. सो फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड और वैल्यू, उसका कुछ वैल्यू होगा. और स्केलर क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ
मैग्नीट्यूड है नो डायरेक्शन। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं, टाइम में हम डायरेक्शन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टाइम इज स्केलर क्वांटिटीज, बट प्रेशर हम कर सकते हैं। सम अदर चीज आगे आपको बताऊंगी, वेलोसिटी है, एक्सलेशन है, दिस आर वेक्टर क्वांटिटीज। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्केलर एंड वेक्टर। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, मैं ये चैप्टर थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बट ऑलरेडी आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो, तो मैं चाह रही हूँ कि एक दो वीडियो में, 2-3 वीडियो में ये ख़त्म कर दूँ मैं। यूनिफॉर्म मोशन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हाट डिड आई से? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, if an object covers equal distance in equal interval of time, then the object is said to be in uniform motion. Then the object is in uniform motion. देखो मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, while making the notes आप प्रॉपर लिखोगे डेफिनेशन। आई रिपीट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जांपल, सपोज आप साइकिल से कहीं जा रहे हो, तो फर्स्ट 5 मिनट्स में आपने 1 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 मिनट में आपने अगेन 1 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 मिनट में अगेन 1 किलोमीटर कवर किया। दैट मीन्स सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, then you are moving in uniform motion. Non-uniform motion, non-uniform motion, if an object covers unequal distance in equal interval of time, unequal distance in unequal interval of time, or equal distance in unequal interval of time, then the object is said to be in non-uniform motion. देखो मैं फिर से बता रही हूँ, टाइम सेम है लेकिन अलग अलग डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, या डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है बट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम अलग अलग लग रहा है, या अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अनइक्वल डिस्टेंस, अगर सिंपल वे में बस एक चीज़ लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आई रिपीट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन unequal interval of time, then the object is said to be in non-uniform motion. देखो सपोज आप साउथ भोपाल में रहते हो, आप यहाँ से 2 व्हीलर में स्टार्ट किए, आप यहाँ से पहुँचे सपोज भोपाल तक, तो अंदर में कोई ट्रैफिक नहीं था, आप सपोज आपने 10 मिनट में आप भोपाल सर्कल पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक है, स्पीड कम करनी है आपको, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में, फर्स्ट 10 मिनट्स में आपने सपोज 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपने 7 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर आप गए शिवरंजनी की तरफ, तो वहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक नहीं था और आराम से आप जा सकते थे, तो नेक्स्ट 10 मिनट में आपने 7 और या 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो एवरी 10 मिनट्स में आपका डिस्टेंस जो है वो अलग हो रहा है, तो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कई बार क्या होता है, आपकी बाइक में या आपके कार में 4 व्हीलर में लगा होता है, एक सामने दिखता है, दैट इज़ नोन एज स्पीडोमीटर, तो वहाँ पे हमें स्पीड दिखती है। तो कई बार आप कांस्टेंट अगर हाईवे पे जा रहे हो तो कांस्टेंट दिखता है 40 मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर, जो वो वैल्यूज़ बता रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो सेम रहता है, लेकिन जब आप ट्रैफिक पे रुक जाते हो तो वहाँ पे 0 हो जाता है, तो आपका 40 की स्पीड से चल रहा था, फिर 0 हो गया, फिर 10, 20 फिर इंक्रीज हुआ, सो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
लेकिन अगर आप सिर्फ हाईवे की बात करूँ मैं 10 मिनट्स पे, और आपकी स्पीड कांस्टेंट है 40, या हाईवे पे तो जनरली ज़्यादा होती है, तो मान लो 60 की स्पीड पे हो आप। मैं जनरली 60 से ज़्यादा नहीं कभी करती हूँ, नॉर्मली 40-50 के बीच रहता है। हाईवे पे है तो 60-70 पे मैं ड्राइव करती हूँ। तो सपोज़ आप हाईवे पे जा रहे हो और आपकी स्पीड कॉन्स्टेंटली स्पीडोमीटर में दिख रही है कि 60 पे है, देन यू आर मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन. I hope you have understood this topic, uniform motion and non-uniform motion. Now, come to another topic, speed and velocity. Speed. Speed is a physical quantity which refers हाउ फास्ट और हाउ स्लो द बॉडी इज़ मूविंग. कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट कितना स्लो मूव कर रहा है. स्पीड तो एक कॉमन टर्म है, सबको पता है. हम व्हीकल चला रहे हैं तो 40 की स्पीड से चलाते हैं, 60 की स्पीड से चलाते हैं, 30 की स्पीड से चलाते हैं. तो कितने स्पीड से चला रहे हैं, मतलब वो पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. इफ़ आई एम सेइंग 40 की स्पीड से आप चला रहे हो, इसका मतलब है 40 किलोमीटर. फॉर एग्ज़ाम्पल 40 की स्पीड जब हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है 40 किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड से हम चला रहे हैं. अगर हम इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर भी होता है, मीटर पर सेकेंड में भी करते हैं. अगर मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में व्हीकल 10 मीटर की स्पीड से जा रहा है. सो स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. डिस्टेंस traveled in unit time. This unit time can be in hour, it can be in minute, can be in second. So 40 किलोमीटर in hour per hour या 10 मीटर पर सेकेंड, ये जो है स्पीड का वैल्यू है. एंड किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड ये जो है यूनिट है. मैंने कहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो टर्म होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट. तो यहाँ 10 मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकेंड यूनिट है. सो ऑल्सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज दिस? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. अगर हम इस वैल्यू के साथ, इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कंसिडर कर लें, देन वी कॉल इट वेलोसिटी. Speed with direction is known as velocity. Speed with direction is known as velocity. देखो स्पीड में एक चीज़ और है. स्पीड को अगर मुझे लिखना, स्पीड को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, वी से. यहाँ पे वी से मैंने रिप्रेजेंट किया. तो स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया 1 आवर. तो स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को भी हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब है कि हम यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं. अगर मैं बोलूँ रॉकेट इज़ मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है. द कार इज़ मूविंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. तो जब हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो वो वेलोसिटी हो जाता है. जब हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं देन द टर्म इज वेलोसिटी, दैट स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, एंड ओनली स्पीड विदाउट डायरेक्शन देन इट इज स्पीड. मतलब ओनली मैग्नीट्यूड. वेलोसिटी में क्या है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्पीड में क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली वैल्यूज. सो अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन से स्टार्ट किया
ये B है और ये C है। ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो A से B पहुंचा, B से C पहुंचा और वापस C से B पे आ गया। ये एग्जांपल से मुझे लगता है आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब क्लियर हो जाएगा। तो A से B गया, B से C गया, C से वापस B पे आया। कैसे गया? A to B, B to C और C से वापस B पे आ गया। तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 10 + 10 + 10 30 डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज 30 मीटर। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल ये था और फाइनल ये है। इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर। सपोज ऑब्जेक्ट को A से B से C से वापस B तक आने में टाइम लगा हमारा सपोज 5 मिनट। ठीक है, तो टोटल टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। अब बताओ स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगा? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस था हमारा 30 बाई टाइम था 5, कट हो गया 6 मीटर पर मिनट। गॉट दिस? हमारा स्पीड क्या हुआ? 6 मीटर पर मिनट। और वेलोसिटी क्या होगा? मेरे लिखने के पहले बताओ आप लोग, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना था? 10 मीटर और टाइम कितना लगा? 5 मिनट। तो हमारा होगा ये 2 मीटर पर मिनट। अंडरस्टूड? स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है। इसमें डायरेक्शन होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ आई एम गोइंग टू अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक टर्म है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये क्या चीज़ है भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वही सेम है कि आप कहाँ से कहाँ तक गए। सपोज़ यहाँ से आप साउथ भोपाल से स्टार्ट किया, आप भोपाल पहुँचे, भोपाल से आप जोधपुर चारस्ता गए, वहाँ से शिवरंजनी गए। तो कहीं पे आपकी स्पीड ज़्यादा थी, कहीं पे आपकी स्पीड कम हुई। आप स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट किए तो 40 तक पहुँचे, 60 तक पहुँचे, वापस आप 30 पे आ गए, फिर वापस 60 पे इंक्रीज़ किया। लेकिन आपकी स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुई है, कांस्टेंट नहीं है। तो एवरेज स्पीड की हम अगर पूछें यहाँ से शिवरंजनी तक फाइनली जाने में आपकी स्पीड क्या रही, तो हम बात करते हैं वो एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो यहाँ से शिवरंजनी तक अगर सपोज़ 20 किलोमीटर है और हमें लग गया हाफ एन आवर, तो हमारा होगा अगर टोटल डिस्टेंस, सपोज़ मैंने एग्जांपल लिया, टोटल डिस्टेंस इज़ कितना मैंने बोला था? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर एंड टोटल टाइम 30 मिनट्स या हाफ एन आवर। तो हमारा एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड विल बी 20 अपॉन 1/2। 20 इंटू 2/1 दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एवरेज स्पीड है। तो जब भी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। सिमिलरली अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सेम वे में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने पहले भी बताया था कि डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग है। अगर दोनों कोई भी ऑब्जेक्ट, एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करती हूँ, अगर ऑब्जेक्ट
स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है। बट अगर पाथ चेंज है, सर्कुलर पाथ है या जिग जैग मोशन है या स्ट्रेट लाइन में गया वापस आ गया, तो इन एनी केस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। एक चीज़ और याद रखो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, कैन बी ज़ीरो। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया और वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हाँ, तो आ जाओ वापस एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम कंसिडर करते हैं। सपोज़ मैंने ये इसकी बात ली, सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँचा, ये है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द डायमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन। बट एवरेज स्पीड क्या होगा, ये चीज़ हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, डिस्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो दिस इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो हम लाइव क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे ये। नो, नेक्स्ट टर्म आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया। एक्सलरेशन, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सलरेशन। मैंने बताया मैं थोड़ा शॉर्ट में दे रही हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क मी, आई विल गिव सम मोर एग्जांपल एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक्सलेशन इज ए फिजिकल क्वांटिटी लाइक स्पीड, वेलोसिटी, सब कुछ जो भी हम डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द हाउ द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है। देखो, स्पीड और वेलोसिटी क्या था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्सलेशन क्या है, व्हाट इज एक्सलेशन? एक्सलेशन इज चेंज इन स्पीड और चेंज, जनरली हम वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सलेशन। इट इज change in velocity per unit time, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड भी हम बोल सकते हैं, पर यूनिट आवर भी बोल सकते हैं, बट इन जनरल हम पर यूनिट टाइम, यूनिट मीन्स वन टाइम में, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में, क्योंकि टाइम के क्या क्या यूनिट हैं, सेकेंड, मिनट एंड आवर। तो पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज एक्सलरेशन। एक्सलेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, इनिशियल को हम स्टार्टिंग भी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से। तो a का एक्सप्रेशन हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी। u पहले आता है ना v से, तो u हो गया स्टार्टिंग वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, v बाद में आता है तो v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। तो v माइनस यू अपॉन टी एक्सलेशन। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ए एक्सलेशन। चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी भले चेंज है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो ये होगा मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का यूनिट क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो सेकेंड। तो ये आ गया मीटर पर, ये एस भी नीचे आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको लिखते हैं एम एस माइनस 2, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम पर एस स्क्वायर या एम एस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब देखो, एक्सलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सलेशन नेगेटिव भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव एक्सलेशन एंड नेगेटिव एक्सलेशन, पॉजिटिव एक्सलेशन, if the final velocity is more than initial velocity, then acceleration will be positive. If final velocity v is greater than u. देखो, आप स्कूटर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्सलेट करते हो ना, तो या कार में एक्सलेशन के लिए हम एक्सलेटर को प्रेस करते हैं पैड से. तो जब हम एक्सलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ाते हैं, राइट. तो जब आप कार में बैठो, जब आप कार ड्राइव करो और एक्सलरेट कर रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ रही है. पहले सपोज 0 पे थी, फिर 10 पे हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ. तो फाइनल वेलोसिटी सपोज आपका 50 तक गया, तो 50 पे था और स्टार्टिंग 0 था, तो फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो पॉजिटिव एक्सलेशन है. जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सलेशन पॉजिटिव है. निगेटिव एक्सलेशन कब है? जब स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. वेलोसिटी इंक्रीजेस. इन दिस केस वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. आप कार ड्राइव करो, सडनली आपके सामने कोई दूसरी व्हीकल आ गई या कोई काव आ गया या कुछ हो गया, तो उस समय क्या करते हो? आप सडन ब्रेक लगाते हो, आपकी स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है. तो इफ़ final velocity is less than initial velocity, then the acceleration is negative acceleration. In this case the velocity decreases. So I hope you have understood positive acceleration, negative acceleration. इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे या कुछ होगा वो मैं डिस्कस करूँगी जब मैं सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगी. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, लाइक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो आज के लिए फॉर दिस वीडियो टिल हियर आई हैव एक्सप्लेन स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, एक्सेलरेशन, एट्सेट्रा. थैंक यू.